students, welcome back. Hope you are doing good and your preparation for the exams are in full swings. As you know, we have covered the entire portion into comprehensive playlist. We have also separate videos on the practice questions to ensure that all your doubts are clear. I hope you have been putting in effort and all the concepts are crystal clear by now. Alright then, it's time to put your knowledge to the test. Today's video is all about solving the sample paper issued by the CBSE for the session 23-24. And guess what? There are many more to come. So stay tuned and subscribe to the channel to stay updated. Alright then, without wasting much delay, let's get started. Hope you will enjoy this session. So let's read the first question from the sample paper. State true or false in a Python program. If break statement is given in a nested loop, it terminates the execution of all the loops in one go, and this statement is false because break statement terminates the immediate loop. It means जिस भी loop में break statement present होता है सिर्फ उसी loop से control बाहर आ जाता है. If you have clear understanding of this concept, it's well and good. Otherwise, you can understand this with one example. In this example, we have used break statement along with the condition which is present in the inner loop. तो जब भी ये कंडीशन सेटिस्फाई होगी, ब्रेक की वजह से कंट्रोल सिर्फ इनर लूप से बाहर आ रहा होगा, ये प्रिंट स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं होगा. दैट्स वाई हमें j इक्वल्स टू 2 ये वैल्यूज यहाँ पे नहीं मिल रही है. Let's check out second question. In a table, there is a attribute A having varchar 20 data type and the value Keshav is stored in that attribute. There is one more attribute B having data type char 20 which has Meenakshi as value. हमें बताना है कि एट्रीब्यूट A और एट्रीब्यूट B कितने नंबर ऑफ कैरेक्टर्स ऑक्यूपाई कर रहा होगा और इसका आंसर हमें मिल रहा है ये. If you are familiar with the concepts of the MySQL, you can skip this part. When we declare any field of varchar data type, वो उतने ही बाइट्स ऑक्यूपाई करता है जितनी लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग होगी. इसीलिए एट्रीब्यूट A नंबर ऑफ बाइट्स ऑक्यूपाई कर रहा है 6 क्योंकि केशव की लेंथ है 6. Whereas in case of char data type जितने भी बाइट्स हमने यहाँ पे मेंशन किए हैं उतने ही बाइट्स ऑक्यूपाई हो रहे होंगे. हमने यहाँ पे मेंशन किए हैं 20 इसलिए भी एट्रीब्यूट 20 बाइट्स ऑक्यूपाई कर रहा होगा. दैट्स वाई हमारा करेक्ट आंसर है बी 6 and 20. इट्स टाइम टू मूव हेड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. What will be the output of the following statement? Pause the video and attempt the question. Then you can resume back and check your answer against me. To calculate this expression, you should know the precedence of operators. Given expression में जो भी operators है इसमें सबसे ज़्यादा precedence तो exponential operator का है और it operates from right to left. Accordingly, 2 to the power 3 will get calculated first and we will get answer as 8. There is one more exponentiation operator, so 2 to the power 8 will get calculated as 256. Exponentiation operator के बाद हमें हाईएस्ट प्रायोरिटी मिलती है मल्टीप्लिकेशन डिवीजन और फ्लोर डिवीजन ऑपरेटर्स को. Except exponentiation operators, all other operators operate from left to right. Alright, we have one division operator that is 99 divided by 11. The answer will be 9.0 because division operator give result in the form of float. In the next level, we will be having operators like plus and minus. So, let's calculate 3 minus 256. It will be minus 253 and finally minus 253 plus 9.0 will be minus 244.0. So, if we look at the options, C is the correct choice. It's time to proceed to the fourth question. Select the correct output of the code. If you know the answer, you can skip this part and proceed to the next question. There is a string which is initialized to the variable s and we are applying split function on that string. Split function string को split करता है based on spaces by default. तो L में हमें कुछ इस तरह की लिस्ट मिल रही होगी. फर्स्ट एलिमेंट का इंडेक्स है 0, दिस इज 1 एंड दिस इज 2. नेक्स्ट स्टेटमेंट चेक कर लेते हैं. वी आर अप्लाइंग अपर फंक्शन ऑन द
एलिमेंट विच इज एट द इंडेक्स 0। इंडेक्स 0 पे कुछ इस तरह की स्ट्रिंग है, तो अपर फंक्शन अप्लाई करने के बाद वो अपर केस में चेंज हो जाएगी। जो एलिमेंट फर्स्ट इंडेक्स पे है उसे हम एज इट इज ही ले रहे हैं, और जो स्ट्रिंग सेकेंड इंडेक्स पे है दैट इज फन, उस पे हम कैपिटलाइज मेथड अप्लाई कर रहे हैं, जिससे फर्स्ट लेटर कैपिटल में कन्वर्ट हो जाता है। उसके बाद हम यूज कर रहे हैं जॉइन फंक्शन, और हमने मेंशन की है स्ट्रिंग डैश। तो जितने भी एलिमेंट्स हमने जॉइन फंक्शन में मेंशन किए हैं उसमें ये डैश इंसर्ट हो जाएगी, तो हमारा फाइनल आउटपुट कुछ इस तरह होगा। सो गिवन ऑप्शन में से करेक्ट आंसर इज बी। Let's move ahead and check the fifth question. If you know the answer of this question, let me know in the comments. Table alpha has 5 degree. Degree मतलब columns होते हैं और cardinality होते हैं rows. And the cardinality of alpha is 3. Now let's move ahead to the table beta. It has 3 degree and 5 cardinality. So what's the question? If we do the Cartesian product of alpha and beta, we have to tell the degree and cardinality of the resultant table. It's simple. Columns तो add हो जाएंगे, तो डिग्री होगी 8. Now what about the cardinality? जब हम कार्टेशियन प्रोडक्ट करते हैं तो फर्स्ट रिकॉर्ड ऑफ द फर्स्ट टेबल मैच हो रहा होगा टू ईच एंड एवरी रिकॉर्ड ऑफ द सेकेंड टेबल। तो फर्स्ट रो के लिए हमें मिल रहे होंगे 5 रिकॉर्ड्स, इसी तरह हमें सेकेंड रो के लिए मिलेंगे 5 रिकॉर्ड और थर्ड रो के लिए भी 5 रिकॉर्ड। अगर हम देखते हैं तो ये टोटल 15 रोज बन जाएगी। तो इस तरह हमें मिले हैं 15 रोज, तो कार्डिनलिटी हो गई 15। दैट्स वाई द आंसर इज 8 and 15. 8 is the degree and 15 is the cardinality. The option B is the correct option. Hope you understood this explanation. Let's proceed and read the 6th question. It is related to networking. Riya wants to transfer picture from mobile phone to her laptop. For that Riya ने यूज की है ब्लूटूथ टेक्नोलॉजी। हमें बताना है कि ये कौन सा नेटवर्क फॉर्म हो रहा है। लैन हम विद इन बिल्डिंग यूज करते हैं, मैन विद इन सिटी, और वैन तो वर्ल्ड वाइड होता है। विद इन होम जब हम डिवाइसेस कनेक्ट करते हैं तो हम यूज करते हैं पर्सनल एरिया नेटवर्क। सो हमारा करेक्ट ऑप्शन है ए, दैट इज पैन, पर्सनल एरिया नेटवर्क। इट वॉज ईजी। नाउ लेट्स चेक आउट द 7th क्वेश्चन। फ्रॉम द डिक्शनरी वी हैव टू डिलीट द की वैल्यू पेयर फॉर द की रेड। एंड डिलीट करने के लिए जो हम डेल स्टेटमेंट यूज करते हैं वो एक स्टेटमेंट है, मेथड नहीं है, तो ये भी ऑप्शंस रॉन्ग है। द करेक्ट ऑप्शन इज दिस बी, डेल D1 एंड वी आर प्रोवाइडिंग द की हियर। द की इज रेड। I will suggest you to write all the methods and the functions related to list, string, tuples and dictionary so that you can solve this type of questions easily. Let's move ahead and check out the next question. This is based on string slicing. If you know the answer, pause the video and try it yourself. For slicing, there are 3 parameters. The first parameter is the starting, second is ending, and the third parameter is step. You know that end parameter and step is exclusive. We don't include the upper limit. That's why the step will be -1. -1 से ये इंडिकेट हो रहा है कि हमें निगेटिव इंडेक्सिंग को कंसिडर करना है। स्टार्टिंग तो -2 है, ये हमें समझ में आ रहा है। When we look at the end index, it is 2, बट हम निगेटिव इंडेक्सिंग को कंसिडर कर रहे हैं। 2 is equivalent to -13। स्टेप की तरह भी एंड इंडेक्स हमें लेस देन 1 करके ही कंसिडर करना पड़ेगा, तो हम ले रहे होंगे अप टू -12। तो अब हमें ये क्लियर है कि हमारा स्टार्टिंग इंडेक्स -2 है, एंडिंग इंडेक्स -12 है और स्टेप -1 है। सो लेट्स स्टार्ट स्लाइसिंग। C प्रिंट हो रहा होगा, N को हम स्किप करेंगे, E प्रिंट हो रहा होगा, D को हम स्किप करेंगे, इसी तरह I प्रिंट हो रहा होगा, S को हम स्किप करेंगे। नेक्स्ट E को हम प्रिंट कर रहे होंगे, R स्किप हो रहा होगा। R के बाद P प्रिंट हो रहा होगा, स्पेस को हम स्किप करेंगे और लास्ट में 0 प्रिंट हो जाएगा। तो फाइनली हमें कुछ इस तरह की स्ट्रिंग मिल रही होगी। अगर आपने इसे ट्राई किया था, होप आपको भी यही आउटपुट मिल रहा है। हमारा करेक्ट ऑप्शन बी होगा। इट वॉज नाइस क्वेश्चन। लेट्स रीड द नेक्स्ट वन। From the following code, we have to tell which statement will give the error. Let's check out the first statement.
सबसे पहले हमने एक टपल को इनिशियलाइज किया है विथ सम वैल्यूज. In the first statement, we are printing the tuple, so it will not give any error. In the next statement, while printing, we are adding 50 to tuple, so this is also fine. In the third statement, we are applying max function on the tuple. This is also absolutely correct. Let's proceed and check out the fourth statement. Here, we are trying to update the element of the tuple. As you know, tuple is immutable. We cannot change the content of the tuple in place. So, the fourth statement will display error. When we will try to execute this statement, we will get the error, type error, that tuple doesn't support item assignment because we cannot change the content of the tuple. So, the correct option is D, statement 4. तो 9 क्वेश्चन हमने सॉल्व कर लिया है. Let's proceed. In the 10 questions, we have to guess the possible output. Wow, this type of questions really give exercise to our brain. Sometimes we go mad. What do you think? Let me know in the comments. As usual, if you know, you can proceed to the next question by skipping this portion. Those who have checked my playlist, there are a lot of questions I have solved, and I am sure for those students it will be easy to dry run and get the required output. But no worries, we will do it one more time. रैंडम नंबर जनरेट करने के लिए हमने रैंडिन फंक्शन यूज़ किया है जिसमें दोनों पैरामीटर इंक्लूसिव होते हैं. तो हमें माय नंबर में 0, 1, 2 या 3 ये 4 वैल्यूज मिल रहे होंगे. हम यहाँ पे नेस्टेड लूप का यूज कर रहे हैं. द आउटर लूप इज टेकिंग वैल्यूज फ्रॉम द लिस्ट नेम्ड कलर and the values in the list are yellow, white, black and red. Now let's check out for the inner loop. Inner loop की starting value 1 है जो हमने यहाँ पे मेंशन कर दी है. सेकेंड पैरामीटर तो वेरिएबल है माय नंबर जिसमें हमें ये 4 वैल्यूज मिल सकती है 0, 1, 2 या फिर 3. रेंज फंक्शन कैसे वर्क होता है इससे भी हम फैमिलियर है. जो सेकेंड पैरामीटर होता है वो एक्सक्लूसिव होता है. तो अगर इस तरह की वैल्यूज मिलती है 1, 0 तो ये लूप एग्जीक्यूट नहीं होगा. 1, 1 के लिए भी एग्जीक्यूट नहीं होगा. स्टार्टिंग वैल्यू 1 है तो नेक्स्ट पैरामीटर उससे बड़ा चाहिए तभी लूप एग्जीक्यूट होगा और ये एग्जीक्यूट हो रहा होगा ओनली वंस. अब हम चेक कर लेते हैं कि हम प्रिंट क्या कर रहे हैं. हम प्रिंट कर रहे होंगे I. तो I ले रहा होगा जो 0th इंडेक्स पे एलिमेंट है दैट इज येलो. उसके बाद हम एंड पैरामीटर के साथ स्टार प्रिंट कर रहे हैं तो हमें इस तरह की वैल्यू मिल सकती है. अगर रैंडम नंबर 3 जनरेट हुआ तब भी ये लूप एग्जीक्यूट होगा. ये लूप एग्जीक्यूट होगा 2 टाइम्स. इसीलिए हमें कुछ इस तरह की वैल्यूज मिल रही होंगी. येलो स्टार एक बार प्रिंट होगा और येलो स्टार सेकेंड टाइम भी प्रिंट होगा. इससे हमें ये समझ में आ रहा है कि फर्स्ट पास में येलो स्टार वंस प्रिंट हो सकता है या फिर येलो स्टार 2 टाइम्स प्रिंट हो सकता है. ये पॉसिबल वैल्यूज मिल रही है. तो लूप सेम वैल्यूज के लिए सेकेंड पास में, थर्ड पास में और फोर्थ पास में भी एग्जीक्यूट होगा. लिस्ट के 4 एलिमेंट्स है इसलिए ये 4 टाइम्स एग्जीक्यूट हो रहा होगा. सेकेंड पास में जो सेकेंड एलिमेंट है वाइट वो वंस प्रिंट होगा या फिर ट्वाइस प्रिंट हो रहा होगा. इन दिस वे थर्ड एलिमेंट और फोर्थ एलिमेंट के लिए भी ये पॉसिबल वैल्यूज हमें मिल रही होगी. नाउ लेट्स चेक आउट द ऑप्शंस. फर्स्ट पास में रेड तो हमें नहीं मिल रहा है, हमें वाइट भी नहीं मिल रहा है. नाउ लेट्स चेक आउट द रिमेनिंग 2 ऑप्शंस. हमें एक बार येलो मिल सकता है, दिस इज पॉसिबल. सेकेंड पास में हमें वंस वाइट मिल सकता है या ट्वाइस भी वाइट मिल सकता है. नाउ कम टू द थर्ड पास. हमें ब्लैक वंस मिल सकता है या फिर ब्लैक ट्वाइस मिल सकता है लेकिन थ्राइस नहीं मिल सकता. इसलिए डी ऑप्शन भी रॉन्ग हो गया. तो रिमेनिंग ऑप्शन इज बी. हमें ब्लैक स्टार वंस मिल सकता है और लास्ट पास में हमें रेड स्टार वंस भी मिल सकता है. इसलिए हमारा करेक्ट ऑप्शन है बी. होप आपको ये एक्सप्लेनेशन समझ में आ गया होगा. अगर आपके पास और कोई वे है तो आप उस वे से भी इसे सॉल्व कर सकते हैं. कमेंट्स में मुझे जरूर बताइए कि आपको ये रैंडम मॉड्यूल पे बेस्ड क्वेश्चंस कैसे लगते हैं. आपको ये चैलेंजिंग लगते हैं या फिर इजी. तो इस तरह हमने ये 10 क्वेश्चन भी सॉल्व कर लिया है विद द करेक्ट चॉइस बी. ओके देन लेट्स प्रोसीड टू द 11th क्वेश्चन. The modem at the center computer act as a.
ये क्वेश्चन इजी है, अगर आपको मॉडेम का फंक्शन पता है तो करेक्ट आंसर बी है, दैट इज मॉड्यूलेटर। टू मेक इट इजी यू कैन रेफर दिस डायग्राम। सेंटर कंप्यूटर पे मॉड्यूलेशन की प्रोसेस होती है जिसमें डिजिटल सिग्नल्स एनालॉग सिग्नल्स में कन्वर्ट होते हैं, और इसी का रिवर्स प्रोसेस रिसीवर कंप्यूटर पे होता है जिसमें एनालॉग सिग्नल्स डिजिटल सिग्नल्स में कन्वर्ट होते हैं। इस प्रोसेस को हम बोल रहे होंगे डीमॉड्यूलेशन। एंड बाय यूजिंग दिस टू टर्मिनोलॉजीज मॉडेम वर्ड बना है। मॉडेम मतलब मॉड्यूलेशन एंड डीमॉड्यूलेशन। तो आपको ये समझ में आ गया होगा डायग्राम से कि मॉडेम सेंटर कंप्यूटर्स पे मॉड्यूलेशन करता है। इट्स टाइम टू चेक आउट द नेक्स्ट क्वेश्चन। वी हैव टू fill here the missing statement. If we look at the code, test is a user-defined function which is trying to access a variable present outside the function. So here B is a global variable. If you want to access the global variable inside the function, you have to use the global keyword and then name of the variable. So when this test function will get called, A will be 10, and when we will add A to B, it will get added to 100. In this way, we will get answer as 110 when we will print B. So with the option C, global B, we are getting the required output too. Cool. With that note, let's move ahead to the next question. State whether the following statement is true or false. And the statement is, an exception may be raised even if the program is syntactically correct. This statement is absolutely right. So we have to write true. Now I am not going into the depth of exception handling. I hope you know all the concepts. But if not, you can go through this video at the speed of 2x and make it clear. Time to check out the next question, which is based on relational databases. This question is based on key. If you know all the keys, you can solve it easily. हमें बताना है कि कौन सी स्टेटमेंट फॉल्स है। एनी कैंडिडेट की इज एलिजिबल टू बिकम अ प्राइमरी की, ये स्टेटमेंट तो ट्रू है। प्राइमरी की यूनिकली आइडेंटिफाई करता है टपल को, यस दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो ट्रू। लेट्स चेक आउट द स्टेटमेंट इन द डी ऑप्शन। अ फॉरेन की इज एन एट्रीब्यूट हुज वैल्यू इज डिराइव्ड फ्रॉम द प्राइमरी की ऑफ अनदर रिलेशन, ये स्टेटमेंट भी ट्रू है। तो इसको देखते हुए जब स्टेटमेंट सी पढ़ेंगे हमें पता चल जाएगा कि ये स्टेटमेंट फॉल्स ही है। लेट्स रीड इट। अ कैंडिडेट की इज नॉट अ प्राइमरी की, इज अ फॉरेन की। ये स्टेटमेंट फॉल्स ही है क्योंकि जब भी हम फॉरेन की क्रिएट करते हैं वो किसी दूसरे टेबल की प्राइमरी की होती है, इसलिए हमारा करेक्ट ऑप्शन है सी। प्रिपेयर MySQL प्रॉपरली बिकॉज इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ऑलमोस्ट 20 मार्क्स आर असाइन फॉर दिस यूनिट। फाइनली हम पहुंच गए हैं 15 क्वेश्चन पे, वो है फिल इन द ब्लैंक। चलिए इसे रीड करते हैं। इन केस ऑफ डैश स्विचिंग बिफोर अ कम्युनिकेशन स्टार्ट्स, अ डेडिकेटेड पाथ इज आइडेंटिफाइड बिटवीन सेंडर एंड रिसीवर। हम स्विचिंग टेक्निक्स को रिकॉल कर लेते हैं। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ स्विचिंग टेक्निक्स। फर्स्ट हमने पढ़ी थी वो है सर्किट स्विचिंग, सेकेंड इज पैकेट स्विचिंग और थर्ड है मैसेज स्विचिंग। इन केस ऑफ पैकेट स्विचिंग और मैसेज स्विचिंग में कोई डायरेक्ट डेडिकेटेड पाथ नहीं होता है, लेकिन सर्किट स्विचिंग में डेडिकेटेड पाथ पहले क्रिएट होता है। दैट्स व्हाई द करेक्ट आंसर इज सर्किट स्विचिंग। इसका एग्जाम्पल हमें पता है, जैसे टेलीफोनिक कन्वर्सेशन। ऑल राइट, लेट्स प्रोसीड। 16 क्वेश्चन रीड करते हैं। इट इज बेस्ड ऑन फाइल हैंडलिंग। फाइल हैंडलिंग टॉपिक भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, हर एक सेक्शन में इसका एक क्वेश्चन होता ही है। सो आई वुड सजेस्ट टू राइट डाउन ऑल द फंक्शंस रिलेटेड टू टेक्स्ट फाइल, बाइनरी फाइल एंड CSV फाइल इन शॉर्ट इन वन पेपर। लेट्स रीड द क्वेश्चन। हमें बताना है कि फॉलोइंग फंक्शंस में से कौन सा फंक्शन हम यूज करते हैं टू चेंज द फाइल पॉइंटर पोजिशन। अगर आपको याद है, वी यूज फ्लश फंक्शन टू फोर्स राइटिंग ऑफ डेटा ऑन डिस्क विच इज स्टिल पेंडिंग इन द आउटपुट बफर। टेल फंक्शन से हमें करंट पोजीशन ऑफ द फाइल पॉइंटर पता चलती है। थर्ड फंक्शन है सीक फंक्शन, जिससे हम चेंज करते हैं पोजीशन ऑफ द फाइल पॉइंटर। और ऑफसेट तो एक नंबर होता है, इट इज नॉट अ फंक्शन। सो दिए हुए ऑप्शंस में से फ्लश नहीं है, टेल नहीं है और ऑफसेट भी नहीं है। करेक्ट ऑप्शन इज सीक। सीक से हम फाइल पॉइंटर की पोजीशन चेंज करते हैं और उसे न्यू पोजीशन पे प्लेस कर सकते हैं। आफ्टर कंप्लीटिंग 16 क्वेश्चन सक्सेसफुली, वी आर एट द लास्ट सेक्शन ऑफ द सेक्शन A, that is assertion and reasoning.
These type of questions are little confusing sometimes. So read the question carefully. Then try to fit the correct option from the given 4. So out of these two, let's read the first one. Assertion हमें दिया है कि लिस्ट एक इम्यूटेबल डेटा टाइप है. इम्यूटेबल डेटा टाइप और म्यूटेबल डेटा टाइप कौन से है, इसका आप एक टेबल बना के रख लीजिए. सो आपको याद रहेंगे. तो आपके रेफरेंस के लिए ये टेबल रेडी है. इम्यूटेबल डेटा टाइप्स आर स्ट्रिंग, टपल, नंबर्स एंड बुलियन. और म्यूटेबल होते हैं लिस्ट, डिक्शनरी और सेट. असर्शन में लिखा था कि लिस्ट इम्यूटेबल है, तो असर्शन तो फॉल्स हो गया. नाउ लेट्स रीड द रीजनिंग. When an attempt is made to update the value of an immutable variable, old value is destroyed and new value is created by the same name in memory. If you know the difference between immutable and mutable data types, this is the exact definition of immutable data type. So this is true. हम इसे एक एग्जाम्पल के साथ समझ लेते हैं. स्ट्रिंग एक इम्यूटेबल डेटा टाइप है. लेट्स असाइन सम वैल्यू टू इट. अब हम इसे प्रिंट करके देख लेते हैं. तो हमें वैल्यू मिल रही है जो हमने असाइन की है. नाउ इन द सेम वेरिएबल आई एम गोइंग टू असाइन सम अदर वैल्यू. लेट्स राइट सम रैंडम स्ट्रिंग हियर. हम देख सकते हैं कि स्ट्रिंग 1 की वैल्यू अब है पॉजिटिव. जो ओल्ड वैल्यू थी वो तो अपडेट हो गई है. तो इस तरह इसका करेक्ट ऑप्शन हमें मिल रहा है डी. ए इज फॉल्स बट आर इज true. Now we are at the final question, that is the 18th question. Let's read the assertion carefully. Python standard library consists of modules. Pause the video and let me know the correct answer for this question in the comments below. क्या आप जानते हैं पैकेजेस, लाइब्रेरी, मॉड्यूल्स और फंक्शंस में क्या रिलेशनशिप है? सो हियर इज द पिक्चर टू मेक ऑल दिस कंसेप्ट क्लियर. लाइब्रेरी में जैसे काफ़ी सारे शेल्फ होते हैं, वैसे ही स्टैंडर्ड पाइथन लाइब्रेरी में काफ़ी सारे पैकेजेस होते हैं. हम शेल्फ्स में बुक्स रख सकते हैं, उसी तरह पैकेजेस में काफ़ी सारे मॉड्यूल्स होते हैं. And we know in books there are many chapters. In the same way, module contains many functions. तो इससे हमें ये समझ में आ गया है कि असर्शन तो ट्रू है. नाउ लेट्स रीड द रीजनिंग. अ फंक्शन इन अ मॉड्यूल इज यूज्ड टू सिंप्लीफाई द कोड एंड अवॉइड्स रिपीटेशन. ये एक्सप्लेनेशन भी ट्रू है. तो इस तरह असर्शन भी ट्रू है और रीजनिंग भी ट्रू ही है. नाउ लेट्स चेक आउट द ऑप्शंस. सी और डी तो फिट नहीं हो रहा है. इन दो में से एक को हमें चूज करना है. Both A and R are true and R is the correct explanation for A. और सेकेंड ऑप्शन में है both A and R are true and R is not the correct explanation for A. हम क्वेश्चन को फिर से रीड करके ये चेक कर लेते हैं कि ये जो रीजनिंग है ये करेक्ट एक्सप्लेनेशन है या नहीं. लाइब्रेरी में मॉड्यूल्स होते हैं, इसीलिए जो फंक्शंस मॉड्यूल में होते हैं वो सिंप्लीफाई करते हैं कोड को. तो ये तो कोई एक्सप्लेनेशन नहीं हुआ कि लाइब्रेरी में मॉड्यूल्स होते हैं, इसीलिए जो मॉड्यूल्स में फंक्शन होते हैं वो सिंप्लीफाई करते हैं कोड को. सो इन चार में से ये जो बी ऑप्शन है ये करेक्ट फिट हो रहा है हमारे असर्शन और रीजनिंग के लिए. बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन फॉर ए. And that's the wrap for today's video. If you found this video helpful, please do share with your friends. If you have any doubt or queries, let me know in the comments. In the next video, we will be covering the part B of the same sample paper. So until then, keep studying smart, stay confident. I will see you in the next one.